Hello students, welcome back to your channel Commerce Brilliance. I am Rajesh Kacholia. Today in this video we are going to study about F.W. Taylor. So first of all, who is F.W. Taylor? F.W. Taylor was a American mechanical engineer, right? Who was working in a steel company. He was working at the factory level. He was working at the factory level. When he was working at the factory level, his aim was to improve the factory system of production. उसका aim क्या था? Factory system of production को improve करना. So he opposed, किसका oppose किया उसने? Rule of thumb. Now, why does he oppose the rule of thumb? First of all, understand the meaning of rule of thumb. Rule of thumb means old methods, untested methods, unscientific methods, trial and error methods which were used there while doing work. जो मेथड यूज करे जाते थे उस टाइम कौन से? ये रूल ऑफ थंब के जो अनटेस्टेड थे, अनसाइंटिफिक थे और ट्रायल और एरर मेथड्स थे, उनके अगेंस्ट में थे वो, राइट? व्हाट डज ही एम्फसाइज ऑन? उसका मेन एम क्या है? उसका एम्फेसिस पे था ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट. किस पे था? साइंटिफिक मैनेजमेंट. व्हाट डज ही स्टेट्स? वो क्या कहते हैं? वो कहता है दैट देयर इज अ वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क. एक सबसे सही तरीका काम करने का. एंड हाउ दैट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क कैन बी फाइंड आउट इज बाय साइंटिफिक स्टडी एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी वर्क. हर काम को साइंटिफिकली जब आप स्टडी करोगे तो आप पता कर सकते हो कि उसको आपको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है. और बाय एनालाइजिंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग द वर्क, काम करने के जितने भी अलग अलग तरीके आप उन सबको भी साइंटिफिकली एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा काम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, विच विल हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन in improving the productivity of the business organization. His aim was to look at the production level, or definitely we can say what he has given his theories, his principles and techniques, whichever he has propounded has been propounded or has been on the basis of the factory level, right? So therefore he has given the 4 principles and 7 techniques. So let's begin with the principles of management. इसको हम बोलेंगे बल्कि scientific principles of management because he is known as the father of scientific management. Now, scientific principle number 1, science not rule of thumb. What does he states? Through this principle, he states that there is a one best way of doing the work which can be found scientifically, through scientific analysis, through systematic study of each and every work. Thus, he states that rule of thumb should not be used. Right? He was just totally against the rule of thumb. He just wanted to replace the rule of thumb method with the scientific method, so that the one best way of doing the work is there, right? At the same time, by using that one best way, productivity can be increased. Productivity of the organization can be increased. Now, number 2, harmony not discord. So first of all, what do you mean by the word discord? Discord means disagreement and conflict. So what does this principle suggest or states? This principle states that there should be a complete harmony between the workers and the management. They should work in harmony. They should work in cooperation. There should be no conflict between them. And now, how can this harmony can be achieved? ये harmony और ये cooperation कैसे आ सकता है? Unity कैसे आ सकती है? By mental revolution. So what do you mean by mental revolution now? Mental revolution means change in attitude. किसके attitude में? Employees and management के attitude में towards each other
so that instead of considering each other as enemy, they should work together in cooperation. They should work together in cooperation. And further, what he stated, that to bring the cooperation from the workers or the employee, management should share the profits with the employees. Right? So thus ultimate, what does principle suggest? That there should be a positive attitude. There should be a positive attitude among the workers, employees and management, so that the mutual cooperation can be achieved and organization goal can be achieved. Right? So thus what does this principle suggest? ये principle क्या suggest करता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए किसके बीच में, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके किसके थ्रू, म्यूचुअल कॉपरेशन के थ्रू। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, समटाइम्स इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन द फर्म, क्या है प्रॉफिट है फर्म में, एंड देयर इज एनिमिटी किसके बीच में, एम्प्लॉयज एंड वर्कर के बीच में। वर्कर सोचता है कि मुझे मैनेजमेंट प्रॉफिट नहीं दे रहा या प्रॉफिट का शेयर नहीं दे रहा, जबकि मैनेजमेंट कुछ चीज सोचता है कि वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं कर रहे, इसलिए फर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस थिंग्स, मेंटल रेवल्यूशन शुड बी देयर एंड दे शुड वर्क इन कोऑपरेशन टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म, सो दैट when the profit is increased, management should also share the profit with the workers। मतलब जब दोनों मिलके काम करें, लड़ाई करने से बेटर है कि वो कोशिश करें कि फर्म की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सके, दोनों मिलके प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। और जब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, वो प्रॉफिट वर्कर्स और एम्प्लॉयज के बीच में बांटना चाहिए। राइट नाउ नेक्स्ट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। Now what do you mean by the term individualism? Individualism का मतलब क्या होता है, different from others and doing things own way, लोगों से अलग और अपने तरीके से काम करना। राइट, पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना कि ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सटेंशन है इस प्रिंसिपल का, मतलब इसको और आगे बढ़ा रही है। कौन से प्रिंसिपल को, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को। कैसे वो भी आप समझेंगे। वहां पे भी कॉपरेशन की बात थी, यहाँ पे भी आप देख लेंगे। पहला पॉइंट आपको वो लिखा कंप्लीट कॉपरेशन, ठीक है। अब ये कंप्लीट कॉपरेशन यहां पे कैसे अचीव करनी है आपको, वो मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट कि एक दूसरे के बीच कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन के लिए क्या होना चाहिए, कॉपरेशन, पहला तो। दूसरी चीज, मैनेजमेंट को उनको डिसीजंस में इन्वॉल्व करना चाहिए, किसको, वर्कर्स को और एम्प्लॉयज को। उनसे सजेशंस लेने चाहिए, उनके सजेशंस को वेलकम करना चाहिए, और साथ में जब भी कोई डिसीजन ले रहे हो तो उनका पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, किसका, वर्कर्स का या फिर एम्प्लॉयज का, सो दैट दे फील सेटिस्फाइड, दे हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। राइट, और अल्टीमेटली प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, किसके बीच में, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, ताकि काम अच्छे से हो सके। नाउ नेक्स्ट इज योर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, हर कोई एम्प्लॉयज भी चाहेगा कि वो अपने फुल पोटेंशियल से काम करे, और मैनेजमेंट भी चाहेगा कि एक अपने एम्प्लॉय के फुल पोटेंशियल का यूटिलाइज करे बेस्ट मैनर में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए प्रोसेस चालू हो जाता है फ्रॉम द टाइम ऑफ सिलेक्शन। फ्रॉम द टाइम ऑफ सिलेक्शन एम्प्लॉयज शुड बी सेलेक्टेड बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हुए एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना चाहिए। उनको अपने रिलेशन, अपनी विलिंगनेस, इसके बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक मेथड जो उनकी कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है, उसके मेथड, उनके बेसिस पे उनका सिलेक्शन होना चाहिए। और आफ्टर सिलेक्शन if they need certain improvements to increase their efficiency, they should be provided with the proper training methods। right, उनको proper training provide करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, they should be provided proper training। अब उनको proper training करके क्या करेंगे, हम उनकी greatest efficiency तक उनको पहुंचा देंगे।
so that now when they are going to work at the greatest efficiency level, their productivity is going to increase. Their productivity is going to increase, firm's productivity is going to increase. When firm or organization productivity is going to increase, both of them are going to get prosper. Both of them means employee and the management both. Now, let's start with the techniques of Taylor, which he has given for improving the productivity of the workers. The 7 techniques which he has given, out of them first is functional foremanship. तो पहले let us understand the meaning of foreman. Foreman कौन होता है? Foreman is the in charge of the operational level workers. In charge of the operational level workers मतलब workers जो production activities में involve होते हैं उनका इंचार्ज होता है. He supervise the various activities of the worker. वो वर्कर्स की बहुत सारी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता है. कौन सी एक्टिविटीज को, क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन है, क्वालिटी है, क्या कॉस्ट है. ये सारी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने का काम किसका होता है? फोरमैन का. देयरफॉर टेलर बिलीव्स कि a single foreman cannot perform all these supervision activities, and he believes that to improve the productivity of the organization, supervision or quality of supervision should be improved. Thus, he has divided the task of supervision of foreman into 2 parts: planning function and execution function. Right? And under each function, he has appointed 4 persons. So therefore, now a worker is going to receive the orders or instructions from these 8 persons. 4 from planning, 4 from execution. Right? Now what does planning function do? Planning function क्या करता है? It prepares the plans for the work, or we can say for the each or every aspect of the work. Whereas execute function ये क्या करता है? ये सप्लीमेंट करता है किसको? प्लानिंग फंक्शन को, सो दैट द प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली. ठीक है. अब प्लानिंग फंक्शन में कौन कौन आते हैं? नंबर 1 इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, उसके बाद रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फिर डिसिप्लिनरी. जबकि एग्जीक्यूशन फंक्शन में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर. अब ये इनके फंक्शंस क्या हैं? लेट अस स्टडी. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है कि व्हाट टू डू, आपकी वर्कर को क्या करना है. रूट क्लर्क ही स्पेसिफाई द पाथ फॉर प्रोडक्शन टू द वर्कर, कि कैसे करना है प्रोडक्शन. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ही प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट ऑफ द वर्कर्स, कि फिक्स करता है टाइम को कि वर्कर ये काम कब शुरू होना चाहिए और ये काम कब खत्म होना चाहिए और कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए. ठीक है. ये फिक्स क्या करता है? इसको टाइम को, काम के शुरू होने के टाइम को और काम के खत्म होने के टाइम को. तो देखो ये प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट. नेक्स्ट इज डिसिप्लिनरियन. ही इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन. इसको मेंटेन करना है, इसको क्या? डिसिप्लिन. दैट मीन्स वर्कर शुड बी फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि काम अच्छे से हो सके. ये आपके प्लानिंग फंक्शंस के पर्सन आ गए. अब एग्जीक्यूशन फंक्शन में नंबर 1 स्पीड बॉस, वो क्या देखता है कि काम टाइमली हो रहा है, एक्यूरेटली हो रहा है, करेक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा है. दैट मीन्स प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है काम करने का. ये काम किसका होता है? स्पीड बॉस का. उसके बाद गैंग बॉस, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर वर्क, कि मशीन्स और टूल्स और इक्विपमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हो वर्किंग के लिए, ऑपरेशंस के लिए, वो रेडी होने चाहिए. ठीक है. जो भी रिक्वायर्ड हो, क्या मशीन, टूल और इक्विपमेंट्स, वो हमेशा तैयार होने चाहिए. रिपेयर बॉस, दोज मशीन्स एंड टूल्स वो तैयार रेडी होने चाहिए. अब ये इनको प्रॉपर कंडीशन में रखने का काम किसका होता है? रिपेयर बॉस का. टू मेंटेन दोज मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, ताकि इसमें कोई डैमेज या ब्रेकेज ना आए. इंस्पेक्टर टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ वर्क, कि काम अच्छी क्वालिटी का हो रहा हो. ठीक है. नेक्स्ट द थिंग इज दैट नाउ
functional foremanship principle, technique. The functional foremanship technique is an extension of division of work principles of Fayol. What does he states in the division of work principles Fayol? That work should be, a complicated task should be divided. Again, the task is divided into 8 parts. Complicated task to उसका फोरमैन का था, right? But it is opposite to the Fayol principles of unity of command. What does it state? कि a single person should receive an order from a single person और single superior, यानी एक single subordinate अपने एक ही superior से ऑर्डर लेगा, one subordinate one superior, जबकि यहाँ पे एक subordinate यानी एक वर्कर कितने से ऑर्डर लेगा, 8 जनों से, right? Therefore it is opposite to the unity of command principle of Fayol. This is the functional foremanship technique. Second technique of Taylor, standardization and simplification. What do you mean by the word standardization? Standardization means setting benchmark or standard for various factors of business operations such as materials, raw material effect, time, equipment, production process, etc., which is required in the business to perform the various operations. ठीक है, तो जितने डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए जितनी चीज़ों की जरूरत होती है उनका स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी है, या उनका स्टैंडर्डाइज्ड होना ज़रूरी है, उनके लिए एक बेंचमार्क सेट होना ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल के लिए क्वालिटी, टाइम के लिए व्हेन द वर्क इज गोइंग टू बी कंप्लीट, काम कब खत्म होना चाहिए उसका भी एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होना चाहिए. वैसे ही आपके लिए प्रोडक्शन प्रोसेस एक तरीका, वो भी एक स्टैंडर्डाइज तरीका होना चाहिए. तो इसका एम क्या है? सो दैट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स ऑफ सेम टाइम्स साइजेस कैरेक्टरिस्टिक, एक तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, सेम टाइप का, सेम साइज का और सेम कैरेक्टरिस्टिक का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो. स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड क्वालिटी. अभी एक्सीलेंस एंड क्वालिटी आ रहा है आपके वर्ड मटेरियल के लिए, कि आपके जो प्रोडक्ट बने हैं, जो आप प्रोडक्ट बनाने चाहते हो, उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी एक क्वालिटी, आपका स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए. ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करें आप. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस. अब जब आप स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ परफॉर्मेंस से मतलब आ रहा है आपका मैन एंड मशीन्स की. तो जो मैन काम करते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी एक स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, और मशीन्स जो वर्क करें वो भी एक स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन हैज टू प्रोड्यूस और इट हैज बीन स्टैंडर्डाइज दैट अ मैन कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स अ डे, तो ये स्टैंडर्ड हो गया उसके लिए. सिमिलरली, इफ इट हैज बीन फाइंड आउट दैट अ मशीनरी कैन प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स अ डे, तो वो स्टैंडर्डाइज हो गया. ठीक है. देन इंटरचेंजेबिलिटी. इंटरचेंजेबिलिटी मीन्स कि जो इक्विपमेंट्स और मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स आप यूज करते हैं बिजनेस के अंदर या मशीन्स के अंदर या इक्विपमेंट्स में, वो इंटरचेंजेबल होने चाहिए. दैट मीन्स वो कहीं पे भी यूज किए जा सकते हो आपस में एक दूसरे बदल के. नेक्स्ट इज योर सिंप्लीफिकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंप्लीफिकेशन? इन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी एक्टिविटीज. अननेसेसरी एक्टिविटीज को एलिमिनेट करना, रिमूव करना, ताकि आप अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो बिजनेस की है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सको. राइट, तो रिमूवल ऑफ और एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड वेराइटीज. अब वेराइटीज का मतलब प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसमें जो आपकी अनवांटेड वेराइटीज हैं उनको रिमूव करना. साइजेस, जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसमें जो अलग अलग साइजेस के प्रोडक्ट बनाते हो उसको भी रिमूव करना. एंड डायमेंशन, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग वेरियस प्रोडक्ट लाइन्स, अब बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन्स बना रहे हो तो उसको लिमिटेड रखना जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो. नाउ सिंप्लीफिकेशन ऑब्जेक्टिव ये क्या है? टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस. रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, जो आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हो उनको लिमिटेड करना, उनको कम करना. ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट लाइन कम कर दी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. एंड रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस. रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस यानी आउटडेशन होने की रिस्क. अब आप प्रोडक्ट ज़्यादा बनाओगे, ज़्यादा स्टोर करके रखोगे, ज़्यादा स्टोर करके रखोगे तो आउटडेशन की रिस्क ज़्यादा होगी. अब आपने जब प्रोडक्शन लिमिटेड कर दिया तो आउटडेशन की रिस्क कम हो जाएगी, और लिमिटेड कर दिया, लिमिटेड प्रोडक्ट से अब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं. लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
अब आपसे वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपके लिए प्रोडक्टिव है। अननेसेसरी जितने प्रोडक्ट्स हैं आपने उनको रिमूव कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ऑटोमेटिकली कम हो गई। लेबर का पैसा बच गया, रॉ मटेरियल का पैसा बच गया, और भी काफ़ी खर्चे बच गए, जैसे मशीन्स के पावर के एंड ऑल। रिड्यूसेस इन्वेंट्री, बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल। अब आपको इन्वेंट्री किसकी मैनेज करनी है? सिर्फ अपने प्रोडक्टिव गुड्स की, जो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप पहले आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता, सारे प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, वो नहीं करनी पड़ेगी। अब आप सिर्फ प्रोडक्टिव गुड की इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो अब आपका इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होगा? बेटर होगा। इन्वेंट्री कंट्रोल का एग्जैक्टली मीनिंग होता है स्टोरेज कॉस्ट, तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब क्यों? क्योंकि आपको उसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, लिमिटेड प्रोडक्ट रहेगा आपके पास। नेक्स्ट इज योर इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। अब हम बात करते हैं इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। अब डेफिनेटली सिंप्लीफिकेशन का एम ही क्या है? एम क्या है आपका? सिंप्लीफिकेशन का एम क्या है? टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और या रिड्यूस द कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को कम करना और साथ में क्वालिटी को इम्प्रूव करना। कैसे? बाय रिमूविंग द अननेसेसरी प्रोडक्ट्स, अननेसेसरी एक्टिविटीज को हटा के आपको क्या करना है? प्रोडक्ट को क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और कॉस्ट को कम करना है। नेक्स्ट इज योर मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी की बात करते हैं, तो मेथड स्टडी क्या होती है? काम करने का तरीका। और हम ये भी जानते हैं कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इस टेक्निक के थ्रू टेलर क्या कहना चाहता है? दैट देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग अ टास्क, बट थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस वी हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। हमें साइंटिफिक एनालिसिस से एक सबसे अच्छा तरीका निकालना है काम करने का, ठीक है, जिससे क्या हो? आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन की कम हो जाए, साथ में प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो जाए। वो मेथड आपके लिए बेस्ट है, जिस मेथड से सब कुछ होता है। और ये किससे पता चलेगा आपको? साइंटिफिक एनालिसिस से। नेक्स्ट इज योर मोशन स्टडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अब व्हेन द वर्कर इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ही टेंड्स टू मूव हिज बॉडी। उसकी बॉडी मूव करेगी, मूवमेंट, कभी इक्विपमेंट लेने के लिए, कभी यहाँ जाने के लिए, कभी वहाँ जाने के लिए। तो अब इस मोशन स्टडी के अंदर क्या है? टू रिमूव द अननेसेसरी मोशंस, जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसकी बॉडी के, उसको रिमूव करना। अब यहाँ पे अननेसेसरी मूवमेंट का मतलब हम क्या ले रहे हैं? दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय काम कर रहा है या वर्कर काम कर रहा है, उसको कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है? इक्विपमेंट्स। और वो इक्विपमेंट्स अगर वो यहाँ काम कर रहा है, उसको लेने जाना सपोज 100 मीटर्स पे जाना पड़ रहा है, ठीक है। कितने? 100 मीटर्स पे लेने जाना पड़ रहा है, फिर रखने जाना पड़ रहा है, फिर लेने जाना पड़ रहा है। इन दिस वे वो क्या कर रहा है? इसका जो ये मोशन है, ये क्या है? अननेसेसरी है। तो इस मोशन को रिमूव करना है। इस मोशन को रिमूव कैसे कर सकते हो? बाय प्लेसिंग दोज थिंग्स, या वो इक्विपमेंट को उसके पास, बाय प्लेसिंग दोज इक्विपमेंट्स नियर बाय हिम, ठीक है, ताकि वो इजीली मैनेज कर सके। या इन बिटवीन, अगर कोई और एम्प्लॉय भी काम ले रहा है उसको, तो इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, ताकि अननेसेसरी मूवमेंट्स कम हो सके, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? आइडेंटिफाई करना प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मोशंस को। जो ये मूवमेंट्स होती है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स की, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, इनको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको इस तरह से मैनेज करना ताकि वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को मिनिमाइज कर सकें, जिससे टाइम सेव हो, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो जाएगी? जब वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कम करेंगे तो थकेंगे नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू गेट टायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फैटिग स्टडी। When a person is working in the organization for a number of hours, say 8 hours, he tends to get tired. वो थक जाता है मेंटल एंड फिजिकली, ठीक है। तो वो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को रिगेन करने के लिए उसको क्या चाहिए? रेस्ट, ठीक है। क्या चाहिए उसको? रेस्ट। सो व्हाट डज द टेलर सजेस्ट? टू आइडेंटिफाई द नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। ये मतलब उसको कितने रेस्ट इंटरवल चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में चाहिए, मतलब कितने टाइम गैप में चाहिए, और कितने ड्यूरेशन के उसको रेस्ट इंटरवल चाहिए, ताकि वो अपना स्टेमिना रिगेन कर सके,
मतलब वो जो थक के जो उसका स्टेमिना खत्म हो गया है उसको रीगेन कर सके, ताकि वो काम एफिशिएंटली और कर सके और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। नाउ टाइम स्टडी, दिस स्टडी इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म द टास्क, कि एक एम्प्लॉय को कितना टाइम चाहिए एक काम को पूरा करने में एफिशिएंटली। ठीक है, इसी के बेसिस पे फिर ये डिसाइड किया जाता है कि अगर एक काम को करने में एक एम्प्लॉय को इतना टाइम चाहिए, राइट, तो हमको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी पूरा काम करवाने के लिए। देखो, नंबर्स ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर टू फाइंड आउट द लेबर कॉस्ट, जब आपको पता चल गया कि आपको कितने एम्प्लॉयज चाहिए तो आप पर एम्प्लॉय कितने देते हो, उसके हिसाब से आपको ये भी पता चल जाएगा व्हाट विल बी योर लेबर कॉस्ट फॉर द वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद डिटरमाइन द फेयर डेज वर्क ऑफ द वर्कर। अब दैट मींस जैसे आपने यहां आइडेंटिफाई की स्टैंडर्ड टाइम, फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने ये आइडेंटिफाई किया कि एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए आपको 10 मिनट चाहिए। कितने? 10 मिनट। तो एक घंटे में आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेंगे? 6। जब एक घंटे में आप 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेंगे तो 7 आवर्स वर्किंग होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपने उसमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें? 42। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें? 42। दैट इज द फेयर डेज वर्क ऑफ द वर्कर। वही एक फेयर डे वर्क है किसका? एक वर्कर का, कि मतलब इतने यूनिट तो प्रोड्यूस करने ही चाहिए किसको? एक वर्कर को, राइट। और इसी के बेसिस पे हमें इंसेंटिव प्लान करते हैं। इन सब के बेसिस के ऊपर ही ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इंसेंटिव स्कीम्स का प्लान आउट करती है कि किस वर्कर को कैसे देनी चाहिए मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये जो पीस वेज सिस्टम है ना, ये किस लिए है? वेजेस एम्प्लॉयज को दी जाएगी, वर्कर को दी जाएगी, किसके बेसिस के ऊपर? उनकी एफिशिएंसी के ऊपर। जो ज्यादा एफिशिएंट होगा उसको ज्यादा मिलेगी, जो कम एफिशिएंट होगा उनको कम मिलेगी। देयरफॉर इट डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। वो किसके बीच में डिफरेंशिएट करता है? एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में। ठीक है, कैसे? एग्जांपल से देख लेते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक दिन में कितना होना चाहिए? 20 यूनिट एक दिन में। कितना? 20 यूनिट। और उन्होंने ये भी डिसाइड कर रखा है कि जो वर्कर 20 यूनिट एक दिन में प्रोड्यूस कर लेगा उसको हम 30 रुपीज पर डे देंगे, एंड द वर्कर हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस लेस देन 20 यूनिट्स पर डे दे आर गोइंग टू गिव देम 25 रुपीज। ठीक है, जो 20 यूनिट तक प्रोड्यूस करेगा उसको 30 रुपीज, जो 20 यूनिट से कम प्रोड्यूस करेगा उसको 25 रुपीज पर डे, राइट। नाउ अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ए वर्कर है और एक बी वर्कर है। ए प्रोड्यूस कर रहा है 20 यूनिट, बी प्रोड्यूस कर रहा है 18 यूनिट्स। जब ए 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको 30 रुपीज से मिल रही है, तो उसकी वजह से 600। और जब ए बी 18 कर रहा है तो उसको वेजेस मिल रही है 25 रुपीज के हिसाब से, इसकी वजह से 450। तो 150 रुपीज का डिफरेंस है। ये किसका डिफरेंस है? एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज, और इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ठीक है, नाउ विद दिस आवर टेक्निक्स एंड्स ऑफ टेलर। नाउ थ्रू दिस वी कंक्लूड द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक पार्ट ऑफ द टेलर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द difference between the tailor and Fayol. So first, contribution. On the basis of contribution, Fayol was the father of general management. Fayol is termed as a or known as a father of general management, whereas Taylor is known as a father of scientific management because he used the scientific methods or techniques. On the basis of concept, general theory of administration, he has given the theories on the basis of the general administration, right, management level, whereas he has given the theory related with the scientific management, scientific observations, experimentations, इसके बेसिस पे उसने थ्योरी दी है। इसकी जो थ्योरी है वो किसके बेसिस है? साइंटिफिक पे। एम्फेसिस, इनका एम्फेसिस है टॉप लेवल मैनेजमेंट है। किसका? फेयोल का। ही हिमसेल्फ वाज एमडी, वो खुद एमडी था, तो उसने जो थ्योरीज और प्रिंसिपल दिए इसके बेसिस पे दिए, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिए? टॉप लेवल। जबकि टेलर एक इंजीनियर था, ही वाज वर्किंग एट द प्रोडक्शन लेवल, तो उन्होंने किसके बेसिस पे दिए? लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर।
to increase the productivity. Applicability, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगी, ये वहीं पे एप्लीकेबल होगी जहां प्रोडक्शन सिस्टम होगा. Therefore, specialized organization where there is a production function, right? Because to increase the productivity. Next, basis of formation, ये किससे बनी है? पर्सनल एक्सपीरियंस पे. जो फ्योल के प्रिंसिपल्स है वो सारे उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बने हैं. व्हाट ही हैज फेस्ड एट द टाइम ऑफ मैनेजमेंट, जो उसने खुद जब वो मैनेजर था, एमडी था ऑर्गेनाइजेशन का, जो सिचुएशन उसने फेस करी है उसके बेसिस पे ये प्रिंसिपल्स बने. किसके? फ्योल के. जबकि टेलर के जो प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स सब बने वो किसे बनी है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. इसने जो टेक्निक्स जो भी अपनी मैनेजमेंट की थ्योरी दी है वो किस पे दी है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे. इसकी अप्रोच क्या है? व्हाट अप्रोच फॉलो? ये टॉप टू बॉटम जाता है. कौन? मैनेजमेंट, सॉरी फ्योल. फ्योल गोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वेयर एज टेलर गोस फ्रॉम बॉटम टू टॉप. So this is the difference between the Fuel and Taylor. These are the major six difference which you should remember.